everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to start a new course on process calculation. Yes, you hear the right that we are going to do a process calculation course which is very important for chemical engineering. And by this course you will be able to do any type of material and energy balance for any process. And trust me student, this course has very good weightage in GATE exam, as well as this subject is very scoring. So before going to start, if you have not subscribed to my channel, subscribe it, otherwise you will not get any type of notification from my side. And the most important thing is that you have to follow me on Telegram, because in the Telegram I used to post many important questions, PDF, books, short notes, and most important mind map, which is helpful for your solving a difficult topics. Okay, so follow me there and subscribe YouTube channel. Okay, now let's start the lecture without wasting our time. So basically, chemical engineering is concerned with the transformation of raw material to the useful product by making use of chemical conversion and physical operation. Okay, now if any industry engaged in such type of transformation is called as a chemical process industries. Now we discuss the roles of chemical engineers, but before that I want to share the definition given by, or you can say that the role of chemical engineers given by the American Institute of Chemical Engineers that I have written in the board. That is, chemical engineering is the application of principle of physical science together with the principle of economics and human relation to field that pertain directly to process and process equipment in which matter is treated to effect a change of state, energy, content or composition. So that is the definition is given by the American Institute of Chemical Engineers. Now we come to the most confusing question that everybody has, that what is the difference between the chemical engineering and chemistry, or you can say that what is the difference between the chemical engineers and the chemists. So this is very important question everybody asks to every chemical engineers. आपको भी कई लोगों ने पूछा होगा कि chemical engineer और chemistry में क्या difference है. तो मैं अब आपको बताती हूँ कि if both the chemist and chemical engineering both are the profession of chemicals, यानी chemical profession है, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें chemical engineers की, his or her interest towards the chemistry is the point of view of industrial application. क्या रहता है उसका point of view, क्या होता है इंडस्ट्री में किस तरीके से केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है, बस उसका उतना ही कंसर्न होता है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग का. वाइल अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट की बात करें तो केमिस्ट क्या होता है, वो वर्क करता है बेंच स्केल टेक्निक पे. बेंच स्केल टेक्निक क्या होती है, मीन्स दे वर्क ऑन ओनली they work in laboratory with a laboratory equipment. Okay, the main work of the chemical engineer is to convert the laboratory scale result to the industrial level. ओके तो यही इसके वर्क है. डिफरेंस है मेन कि केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है और केमिस्ट और केमिकल इंजीनियर में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि केमिकल इंजीनियर्स का वर्क है जो लेबोरेटरी स्केल पे रिजल्ट्स आए हैं उसको अपना इंडस्ट्री लेवल पे कन्वर्ट करना. ठीक है, तो ये बात होगी. और आज के टाइम पे देखा जाए तो एवरीबडी यूजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द केमिकल्स इंडस्ट्रीज. ओके, तो एवरीवेयर एवरीबडी यूजिंग द केमिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है. ठीक है, चलिए नाउ वी टेकिंग द सेकेंड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस. ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद भी स्टूडेंट से पूछा जाता है तो उसका डब्बा गोल ही हो जाता है कि कौन सा इक्विपमेंट कौन से प्रोसेस पे काम करता है और कौन सा प्रोसेस पे कौन सी इक्विपमेंट काम करती है. तो ये जो एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहीं पे आज एक सिंपलेस्ट डिफरेंस बताने जा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन की. इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑपरेशन, वी ओनली कंसर्न विथ
a equipment, not the reaction part. It means we are not concerned with any type of reaction. Okay, but in the case of unit process, we totally concerned about the part of reactions. Okay, let's take an example for that, so that your concept will be clear. That in the case of unit operation, the examples are fluid flow, mass transfer, heat transfer, drying, sedimentations, ion exchange, गैस ऑब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें जो होगी हमारी वो यूनिट ऑपरेशंस में आ गई। अगर हम बात करते हैं यूनिट प्रोसेस में, जिसमें हमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं, उसको कंसर्न करना पड़ता है हमें, तो आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि ये यूनिट प्रोसेस है। लाइक नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, रिडक्शन, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी वो यूनिट प्रोसेस में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि सबसे पहले इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस, कोई भी नॉर्मल पर्सन भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको आज मैंने बता दिया, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस कैलकुलेशन की। हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को प्रोसेस कैलकुलेशन के साथ साथ स्टैच्यूमेट्री और केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इस पे बेस्ड बुक्स मिलती हैं तो आप ये सोचिएगा नहीं कि ये हमारे सिलेबस की नहीं है, लेकिन ये है स्टैच्यूमेट्री और प्रोसेस कैलकुलेशन की ही बुक होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कम टू द टॉपिक दैट there are the fundamentals, there are the some fundamental principle which concern with a unit operation and unit process. What was that? Basically unit process और unit process और unit operation को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, divided into a 4 part. What was that? Like first one is material balance, second one is energy balance, third one is law of equilibrium, fourth one is rate process. तो यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस में? मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रेट प्रोसेस में। जबकि मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस जो है वो मेजर टूल्स है किसी भी प्रोसेस कैलकुलेशन के लिए, मेजर टूल्स है प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द introduction part of the process calculation. Now we are going towards the first chapter, that is unit and dimensions. So there are 2 types of units, that is unit types. There are 2 types of units, that is fundamental unit. First one is fundamental units and second one is derived unit. अब इनका डिफरेंस तो सबको पता ही होगा, ये बहुत ही बेसिक से मैं लेके चल रही हूँ कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हो गई, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल यूनिट्स में आ गई। और फंडामेंटल यूनिट से ही हम क्या डिराइव यूनिट बनाते हैं, मतलब डिराइव यूनिट से ही कहाँ से बनती है, डिराइव्ड होती है किससे, फंडामेंटल यूनिट से। लाइक हो गया लाइक एरिया, फोर्स, एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो आ गई आपकी डिराइव यूनिट में। तो ये होगी यूनिट्स के बारे में, हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ। अब हम इसकी बात करते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट की बात करते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? पहला हो गया SI यूनिट, फिर सेकेंड हो गया CGS यूनिट, फिर थर्ड हो गया FPS यूनिट, फोर्थ हो गया MKS यूनिट। ठीक है, तो ये 4 टाइप की यूनिट्स है। जो ऑफिशियल यूनिट हमारी जो है वो कौन सी है, SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट, जिसमें ऑफिशियल यूनिट में क्या, मास जो हो गया वो kg में हो गया, टेम्परेचर जो हो गया केल्विन में हो गया, लेंथ जो हो गई वो मीटर में हो गई, टाइम जो हो गया वो सेकेंड में हो गया, मोल्स जो हो गई वो किस में हो गया, kg मोल्स में हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो SI यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो ये डिफाइन की गई। तो ऑफिशियली जो हम लोग के ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है वो SI यूनिट ही चलती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट पसंद है तो क्यों पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। तो कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैं हवा को नहीं पढ़ा रही हूँ, केमिकल इंजीनियर्स को पढ़ा रही हूँ। तो ध्यान रखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।